all. Today we are going to start with a totally new topic, that is pair of a linear equation in two variables. So first of all we will understand the meaning, what does it means, and important terms and conditions which will be applicable in solving a pair of linear equations in two variables. Okay, now see here, pair of linear equations in two variables. So when we go for a linear equation, means it's clear, linear equation means a equation which is having degree 1 only, so we call it linear. Okay, in two variables means there are two variables. So standard form of a linear equation in two variables will be, what it will be? It will be ax plus by plus c is equals to 0. It is the standard form of linear equation. Degree is 1, variables are 2, 1 x and y, it can be anything. So now pair of linear equation. So when we talk about pair of linear equation, there has to be two equations. So we call them as pair of linear equations. So to avoid confusion, what we will do, we will write name here a1 and b1, and we will write here a2x plus b2y plus c1 and c2 is equals to 0. So these two are the pair of linear equations. Okay, so when we talk about pair of linear equations, means this particular equation represents a line. Okay, now suppose when we solve and we get some answer, so that we call it solution of this equation, or we also call it as coordinates of that equation. Okay, I'll take a very small example. Just pay attention here to make your more concept clear. Suppose I take here 2x plus 3y is equals to 5. Okay, this is my linear equation with two variables. I have taken only one equation. Okay, now if I substitute the values, x की जगह पे मैंने रखा 1 plus y की जगह पे भी रखा 1 and I solved, so obviously my answer will come, means LHS is equal to RHS. Okay, LHS is equal to RHS. So what values of x and y are satisfying the equation? X is equals to 1 and y is equals to 1 is satisfying the equation. मतलब ये मेरे solutions हैं इस equation के, and I can also write them in a form like this. When I write them in the form like this, so they represents the coordinate of a point. ये represent करेंगे एक point, वो point जिस पे से ये line pass होती है. मतलब this equation is representing a line, okay, with respect to x and y axis, और उस पे एक point कोई है, उसके coordinate है 1,1. तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर वो कहें कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या वो कहें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इक्वेशन, देन ऑल्सो मेथड विल बी सेम. अगर हम x और y की वही वैल्यू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल रिप्रेजेंट अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट. इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दें अपन b, तो इस पॉइंट के ऊपर से ये इक्वेशन हमारी पास हो रही है. व्हाइल प्लॉटिंग द ग्राफ हम ऐसा लिख भी देते हैं इस साइड में. क्लियर? इज इक्वल्स टू 5. तो ये हमें एक इक्वेशन हुई. हियर वी आर हैविंग two equations. So when we are having two linear equations, pair of equations, तो we will have three different conditions. तो अपन वो तीन different conditions समझते हैं कि वो क्या हो सकती है. Let's see. Now the three conditions are, line will intersect at one point. Here what does I mean line will intersect at one point? Means suppose this is my line, one line drawn by first equation, and let it be the second line drawn by another equation. So this point is point of intersection. So when it represents two lines, so they can intersect at a point. Okay, so this is the general form of equations, equation 1 and equation 2. Condition 1 is कि दोनों lines किसी एक point पे intersect करेंगे. They will intersect at one point. Okay. Second case क्या हो सकता है? Lines will be parallel. Parallel means that is not intersect. There can be a condition in which lines will not intersect. Means if one line is going like this, second line will go like this. Means they will not
इंटरसेक्ट, टकराएंगी नहीं, मिलेंगी नहीं, आप इनको कितना ही एक्सटेंड करें, दे विल नेवर मीट ईच अदर। तो वी विल टेल कि लाइंस विल बी पैरेलल। ये हमारी दो कंडीशन हुई। थर्ड कंडीशन विल बी लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। हियर कोइंसिडेंट का मतलब होता है दे विल ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ही ट्रैवल करेंगी वो। ये फर्स्ट लाइन हो गई एंड लेट इट बी द सेकेंड लाइन। मीन्स इनके सारे पॉइंट्स कॉमन है, कोई भी पॉइंट डिफरेंट नहीं है, तो पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करेगी। तो वी कॉल दैट कि लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। ओके, अब इसमें एक चीज और रिमेंबर करने वाली है, बिल्कुल ध्यान से समझें। यहाँ पे जो मैंने आपको सॉल्यूशन निकालना दिखाया, ये एक सिंगल लीनियर इक्वेशन का निकाला। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब हम इस केस में सॉल्व करेंगे, जब लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कितना, एक सॉल्यूशन ऐसा रहेगा जो कॉमन रहेगा फॉर बोथ द लाइंस। सो इस लाइन का और इस लाइन का, और दैट सॉल्यूशन विल बी दिस पर्टिकुलर point. So this will have only one unique solution. Okay, this type of equation will have one solution, or we call it unique solution. Okay, and here lines will be parallel. Lines will be parallel, not intersecting, मतलब इनके कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। इस लाइन के आंसर सारे डिफरेंट होंगे, सॉल्यूशंस डिफरेंट होंगे, और नीचे वाले लाइन के सॉल्यूशंस सारे डिफरेंट होंगे। मींस नो सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ कॉमन सॉल्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसमें कंडीशन आएगी नो सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। हम थर्ड वाली के लिए बात करें, है ना, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पर फॉल कर रही हैं, मतलब इनका हर सॉल्यूशन ही कॉमन है। जो सॉल्यूशन फर्स्ट लाइन का है वही सॉल्यूशन सेकेंड लाइन का है। मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ओके, अब इसके लिए एक नया टर्म यूज किया जाता है। जैसे पूछते हैं, दे आस्क कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास, टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं। पेयर का मतलब समझ गए, हमारे पास दो ही इक्वेशन होंगी। ओके, अब दे आस्क कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है वो इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशंस निकलते हैं, कॉमन सॉल्यूशंस, और वो इक्वेशंस जिनके कॉमन सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं, दे आर इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट जिसका वन यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, एक कॉमन सॉल्यूशन है, तो वी कॉल इट कंसिस्टेंट। ओके, सो ये हमारी क्या है, कंसिस्टेंट। और वो वाली इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ओके, तो वी कॉल दैट एज इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे लिख लेंगे अपन कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट में आएगा बिकॉज इट इज हैविंग वन सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, नो कॉमन सॉल्यूशन दे आर हैविंग, सो दिस विल कम अंडर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ओके, तो ये इनकंसिस्टेंट में आएगा। अगेन जहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब सॉल्यूशंस निकल रहे हैं बहुत सारे कॉमन, तो अगेन ये वाली जो इक्वेशन कहलाएंगी, ये कहलाएंगी कंसिस्टेंट। ओके, अब हम इक्वेशन देख के, जस्ट बाय लुकिंग एट इक्वेशंस, हम कैसे पता लगाएं कि इट इज अ कंसिस्टेंट और इट इज अ इनकंसिस्टेंट। तो उसके लिए एक कंपैरिजन रेशियो होता है, तो आई एम गिविंग दैट रेशियो। ओके, सो लुक हियर properly. Okay, now here I was telling you the condition. Now before understanding the condition, कि what conditions या how you will apply, look here, a क्या है, a is known as coefficient of x. b क्या है, b here b1 is the coefficient of y. c क्या है, c एक constant है। ओके, जैसे अपन इस इक्वेशन में यहाँ देखें, यहाँ 2 का मतलब हुआ a1। ओके, तो मतलब a1 इज रिप्रेजेंटेड बाय 2। यहाँ b क्या हो गया, b1 हो गया अपना
ये वैल्यूज A1 और B1 और C1 की हर इक्वेशन में डिफरेंट होगी। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं ये अप्लाई करना चाहूंगी रेशियोज वाले को क्वेश्चन को, तो पहले मुझे इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। मतलब 5 उधर प्लस में है तो फर्स्ट आई विल ब्रिंग इट 5 दिस साइड, आई विल ब्रिंग द 5 दिस साइड, ताकि इक्वेशन मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इन द सेंस, इसको एक बार और समझाती हूँ मैं आपको। आई विल राइट इट लाइक दिस, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है, सारी चीजें एक ही तरफ होनी चाहिए। देन हर इक्वेशन में A1 अलग अलग होगा। इस केस में A1 है 2, इन दिस केस B1 इज 3, इन दिस केस C1 इज माइनस 5। कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ आएगा, डोंट अवॉइड साइन। क्लियर? नाउ एक एग्जांपल और आपको समझा देती हूँ। एक दूसरी इक्वेशन अगर अपन ले लेते हैं किसी केस में, सपोज इट इज 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। मैं वापस इसलिए ऐसे ले रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो क्या लेंगे हम अपने यहाँ का कोफिशिएंट? कोफिशिएंट विल बी 1। मतलब ये अगर मेरी सेकेंड इक्वेशन है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन, तो सबसे पहले आई विल कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब मैं इसे लिखूंगी 6x माइनस वाई ऐसा कैसा, 3 उधर प्लस में तो इधर माइनस में इज इक्वल्स टू 0। फिर मेरा ये सेकेंड इक्वेशन है तो मैं इसको A2 नाम दे देती हूँ, तो कोफिशिएंट 6 हो गया। यहाँ पे मेरा B2 कुछ नहीं दिख रहा है तो इट विल बी 1 अलॉन्ग विथ साइन, मतलब माइनस 1 साइन के साथ लेना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्टूडेंट्स बिना साइन के लेते हैं देन इट गोज रॉन्ग। एंड C2 आपका हो जाएगा माइनस 3। क्लियर? तो हम इसे रेशियोज में पुट करेंगे। अब कौन से रेशियोज है इधर देख लें। लाइन विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। अगर लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो A1 अपॉन A2 विल नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। आप पुट करेंगे A1 की वैल्यू, नीचे पुट करेंगे A2 की वैल्यू, फिर नॉट इक्वल का साइन, फिर B1 की वैल्यू, B2 की साइन, और चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, बट अगर दोनों इक्वल नहीं है देन इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। सिमिलरली अपन आ जाए, लाइन्स विल बी पैरेलल, मतलब नॉट इंटरसेक्ट, ऐसी पैरेलल लाइंस बनेंगी, है ना। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, इनकंसिस्टेंट। देख के कैसे पहचानेंगे? पहले हम पता लगाएंगे A1 अपॉन A2, फिर B1 अपॉन B2। ओके, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और अगर इन दोनों में ही दोनों रेशियोज इक्वल आ जाते हैं, है ना, तो हम बोल देंगे, और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है, ये वाला इक्वल नहीं है और ये वाला इक्वल है, देन यू विल डिक्लेयर कि जो दोनों लाइंस की इक्वेशन है दे विल हैव नो सॉल्यूशन, मतलब वो दोनों कैसी रहेंगी? पैरेलल। ओके, देन थर्ड कंडीशन इज लाइन विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे पे लाई करेंगी, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, है ना। इन लाइंस को भी कंसिस्टेंट लाइन बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका बहुत इजी है, इसमें तीनों रेशियोज इक्वल होंगे, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। क्लियर? A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज आप साइन के साथ रखेंगे, जितना मिनिमम आप ऊपर नीचे कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं ले आए। देन यू ऑब्जर्व तीनों रेशियोज बराबर दिख रहे हैं, मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्लियर? बहुत आसान है रिमेंबर करना। एक ट्रिक बता देती हूँ, सबसे पहले वाले रेशियोज नॉट इक्वल आ गए तो ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पे वापस से तीनों के रेशियोज बनाए, पहले तो इक्वल है बट बाद वाला नॉट इक्वल, तो वी विल से कि नो सॉल्यूशन, मतलब लाइंस आर पैरेलल। और तीनों ही इक्वल आ गए तो मीन्स लाइन एक दूसरे पे लाई करेंगी, कोइंसिडेंट। क्लियर?